Hello everyone, welcome to MBA Pathshala. So guys, in today's session we have odd one out. आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस odd one out पे. So guys, this is what the session is going to be all about. So let's get started. Okay, so you already know me. Coming to the very first question. Okay, now we already know how do we solve odd one out. सबसे पहली चीज एक बार सारे सेंटेंसेस को पढ़ के देखेंगे, कोशिश करेंगे कि एक सुपरफिशियल रीडिंग से हमें आंसर का हिंट लग जाए एंड देन वी ट्राई टू सी इफ द कनेक्शंस आर रिक्वायर्ड, राइट? ओके, चलो. सो लेट्स लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. We all know the circumstances and constraints under which Francis Willoughby worked, which makes his contributions even more valuable. So यहाँ पे बात हो रही है एक पर्सन की, शायद उसने कुछ अचीवमेंट्स किए, ठीक है. सो द नेम ऑफ द पर्सन इज फ्रांसिस विलीबी एंड दिस पर्सन हैज वर्कड अंडर कंस्ट्रेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस. कंस्ट्रेंट्स का मतलब रुकावटें. तो ए ऑप्शन ये कह रहा है कि भी कंस्ट्रेंट्स के अंदर काम करने के बावजूद उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो ये चीज उनकी कंट्रीब्यूशन को और ज्यादा वैल्यूबल बनाती है, ठीक है. बी ऑप्शन विल बी was the first ornithologist to systematically classify birds. Okay, so ornithologists are like the scientists who study birds and discover the Venice fish market as a rich source of specimens for his study of fishes. So ऐसा लग रहा है that Willoughby was a scientist dealing with nature, dealing with animals, dealing with birds, okay, dealing with fish, ठीक है. तो like he was classifying birds and then he also discovered the Venice fish market where he found some specimens for the study of fishes. Okay, good enough. As people have dug around Willoughby archives, okay, archives means records, they have recognized his substantial contribution to natural history. Okay, so you can see this is nature, this is natural history. और जैसे जैसे लोगों ने इस साइंटिस्ट के आर्काइव्स को, रिकॉर्ड्स को सर्च किया, तो वैसे वैसे उन्हें रियलाइज हुआ कि इनका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा खासा है नेचुरल हिस्ट्री में. As a consequence, there's a fish called Willoughby's char and a whole genus of plants with his name. There is even a Willoughby bee, ironically, though there is no Willoughby bird. Okay, so I can see यहाँ पे as a consequence लिखा है और यहाँ पे लिखा है as a consequence there's a fish called Willoughby's char. Okay, so ऐसा लग रहा है कि ये continuation है आपका बी वाले ऑप्शन का ना, बिकॉज बी वाले ऑप्शन के अंदर आप लोगों ने फिश की बात की थी, ठीक है. और he discovered the Venice fish market and Venice fish market was a rich source of specimen for his study of fishes. As a consequence, there was a fish that was named after him. ठीक है. Okay, so looks like that. Okay, so fish के context में कुछ तो भी बात हो रही है, right? Okay, and then you also have his contribution. Okay, एक काम करते हैं, let me erase this. Okay, we will look at the links बाद में. Okay, let's try to first superficially work out the answer. The British naturalist Francis Willoughby, a precocious talent to revolutionize the way we look at the world, slipped through the cracks of history to become one of the forgotten geniuses of the साइंस. ओके, सो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ से आपने डिस्कशन को शायद स्टार्ट किया होगा और आप ये कहना चाह रहे हो कि ही इज द फॉरगॉटन जीनियस ऑफ साइंस. ही वाज द वन who was very smart, precautious, he revolutionized the way which we look at the world. He must have slipped through the cracks of the history to become the forgotten genius. Okay, so British naturalist Francis Willoughby was a talent who revolutionized the way we look at the world and he slipped through the cracks of the history. That means लोग भूल गए, हालांकि he was a talented person and he became one of the forgotten geniuses of the science. Now, if I look at all the options, I can see that the discussion is mainly talking about Willoughby researching natural science, Willoughby doing his contribution to the discovery of many types of fishes, birds, वगैरह वगैरह. It has to do something with nature, right? तो देखो बी ऑप्शन में आपने वेनिस फिश की बात की, ऑर्निथोलॉजिस्ट के कंटेक्स्ट में बर्ड की बात की, ठीक है. तो बर्ड्स को उन्होंने स्टडी किया. फिर आपने बताया नेचुरल हिस्ट्री. भाई नेचुरल हिस्ट्री क्या है? वही नेचर को
नेचर के अंदर अलग अलग एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑल दैट को स्टडी करना है ना, ठीक है. सो हिज कंट्रीब्यूशन इन द आर्काइव्स दैट रेफर टू द नेचुरल हिस्ट्री, राइट. फिश की बात हो रही है दी ऑप्शन में भी, ठीक है. फिश की बात हो रही है, बर्ड्स की बात हो रही है. सो अगेन ये नेचुरल हिस्ट्री है. द ब्रिटिश नेचुरलिस्ट, ओके, सो ये रहा, ठीक है. सो नेचुरलिस्ट मतलब कुछ तो भी इन्होंने नेचर के कंटेक्स्ट में स्टडी किया, ठीक है. नेचर को स्टडी किया, नेचर की हिस्ट्री को स्टडी किया, नेचुरल साइंस को स्टडी किया, ठीक है. ओके, there is one option that is not talking about nature, natural science, history of history of natural science, natural history. एक ऑप्शन एक अलग ही बात कर रहा है. क्या बात कर रहा है कि हमें पता है कि किस सर्कमस्टांस और किस कंस्ट्रेंट के अंडर फ्रांसिस विल्बी ने वर्क किया, जो कि उनकी कंट्रीब्यूशन को और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है. ओके, हमें पता है कि उन्होंने किस कंस्ट्रेंट में और किस सिचुएशन में काम किया, ठीक है. मतलब ए ऑप्शन से पहले कोई ऐसा कंटेक्स्ट होना चाहिए जिसमें उनके सर्कमस्टांसेस की और कंस्ट्रेंट्स की, रुकावटें, ठीक है, प्रॉब्लम्स जो उन्होंने फेस की उसकी बात हुई हो, और प्रॉब्लम्स के बावजूद वो काम कर पाए, ठीक है, विच मेक्स हिम इवन which makes him even more special or more valuable, his contributions. So guys, अभी मुझे एक चीज बताओ, यहाँ जितने भी ऑप्शंस हैं, यहाँ ऐसा लग तो नहीं रहा कि कहीं कंस्ट्रेंट्स या प्रॉब्लम्स की बात हुई हो, कि कौन से सर्कमस्टांसेस में उन्होंने कैसे भी करके अपना काम किया, बहुत प्रॉब्लम्स आई, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा. इट इज सिंपली अ डिस्कशन विच इज टॉकिंग अबाउट दिस फॉरगॉटन जीनियस, एंड ही वाज डीलिंग with natural history. He was a naturalist. He was studying nature. He was doing things in nature, animals, bird, fish वगैरह, ठीक है. कोई प्रॉब्लम वगैरह की बात नहीं हुई. तो the natural like your like commonsensical natural response should be that A option is a potential answer, ठीक है. एंड आई बिलीव, मुझे मतलब मेरा ये फील है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप लिंकिंग नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन में लिंक बनाने में आपका टाइम जाएगा, ठीक है. हैविंग डन दैट, नाउ लेट्स लुक एट द लिंक्स. ओके, क्या क्या पॉसिबिलिटी लिंक्स की बन सकती है. लिंक्स वैसे इसमें जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हमें समझ में आ गया कि भाई ये सब नेचर के कंटेक्स्ट में ही उन्होंने कुछ कुछ किया है, ठीक है. कहीं पे भी प्रॉब्लम्स वगैरह की बात हुई नहीं, तो ए ऑप्शन इज द आंसर. ओके, सो आई एम जस्ट डूइंग इट एज एन एड ऑन. Okay, so E option guys is the starting option, best option है starting के लिए. The British naturalist Francis will be a precocious talent to revolutionize the way we look at the world, slip through the cracks of history to become one of the forgotten geniuses of the science. ठीक है, बहुत स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे, लेकिन सब भूल गए उनको, है ना. He was a naturalist, and now like maybe we are trying to again go and revisit the history and look at his contribution, right? Okay. फिर आपने बताया कि भाई इतने स्पेशल क्यों थे वो. He was the first ornithologist to systematically classify birds, discover the Venice fish market as a rich source of specimen for fish. ठीक है, okay, good enough. So you have B option, right? अच्छा, अब यहां पे आपने कहा कि भाई वेनिस फिश मार्केट को एज अ रिच सोर्स ऑफ स्पेसिमेन फॉर स्टडी ऑफ फिश इन्होंने निकाला, ठीक है. नाउ यू कैन से as a consequence there's a fish called Wilby's char, and then finally you can place C option in the ending. As people had dug around Wilby's archives over the years, they recognized substantial contribution to natural science. ठीक है, good enough. Okay, contribution उनका काफी ज्यादा था. एक कॉम्बिनेशन इसके अलावा ये भी बन सकता है, and this is even better, that is EBCD, and I will tell you why. Okay, comparatively this one is even better. हालांकि क्वेश्चन ने हमसे लिंक नहीं पूछा है, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो एज अ कॉन्सिक्वेंस लिखा है, अभी एज अ कॉन्सिक्वेंस किस चीज का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. ओके, मे बी हिज आइडिया ऑफ डिस्कवरिंग वेनिस फिश मार्केट एंड स्टडिंग ऑफ फिश, राइट, ठीक है. एक तो ये हो सकता है. दूसरा एक चीज ये भी हो सकती है that this is a consequence of his contribution to natural science. Guys, look at this. They have recognized his substantial contribution to natural science. Okay, so even this link is a very good link, है ना. Okay, so preferably अगर मुझे choose करना होगा तो I will go in with EBCD. Okay, because fish का नाम आपने
अगर उनके नाम के ऊपर रखा है तो इसका मतलब कोई तो बड़ी चीज होगी जिसके बेसिस पे ये नाम रखा जा रहा है। ओके, सो EBCD लुक्स लाइक अ बेटर लिंक। ओके, सो फाइनली माय आंसर इज ए ऑप्शन, सॉरी, फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। And we have also looked at this question from the linking perspective. Let's move on to the next question. Okay, so guys, let's see. What is the question saying? It was not our large brains, intelligence, or language that gave us culture, but rather a culture that gave us large brains, intelligence, and language. So यहाँ पे आप emphasize कर रहे हो culture को, ठीक है? Culture कहाँ से आता है? Society से. So author ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि हमारे लार्ज ब्रेन से इंटेलिजेंस और लैंग्वेज है उसकी वजह से हमारा कल्चर आया। एक्चुअली उल्टा है कि जो कल्चर है उसने हमें लार्ज ब्रेन, इंटेलिजेंस और लैंग्वेज का स्किल दिया। मतलब कल्चर पहले आया और कल्चर की वजह से हमारा ब्रेन, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड ऑल दैट वो सब आया। ठीक है, तो एम्फेसिस इज ऑन कल्चर, राइट? इंडिविजुअल्स देन बिल्ट अप iteratively on that reservoir of pooled knowledge over long periods. इंडिविजुअल्स ने उस रिजर्वॉयर के ऊपर बिल्डअप किया काफी समय तक, आइटरेटिवली ऑन रिजर्वॉयर ऑफ पूल्ड नॉलेज ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो कोई तो भी पूल्ड नॉलेज की कहीं पहले बात हुई होगी। ठीक है, it has to do with society, pooled knowledge. For a small number of species, the physical environment brought about the sociological change. For a small number of species आ गया। अभी तक तो यार इंसानों की बात हो रही थी, ऐसा लग रहा है ना कि ये इंडिविजुअल यहाँ पे ह्यूमंस हैं। पूल्ड नॉलेज किसकी होगी, है ना? ह्यूमंस की होगी। यहाँ पे इंटेलिजेंस और ब्रेन्स, लैंग्वेज वगैरह, ये लैंग्वेज किसके कंटेक्स्ट में आएगा? ह्यूमंस के कंटेक्स्ट में। यहाँ भी ह्यूमैनिटी लिखा है ना? कम्युनल स्टोर ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी ह्यूमैनिटी के कंटेक्स्ट में। ये क्या आ गया? फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ स्पीशीज। अब ह्यूमंस वाला एंगल हटके अब स्पीशीज की बात हो रही है, यानी कि बाकी एनिमल की स्पीशीज है ना, फॉर स्मॉल नंबर ऑफ स्पीशीज, राइट? For small number of species, the physical environment brought about sociological change. मतलब कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिसमें फिजिकल एनवायरनमेंट सोशियोलॉजिकल चेंज को लेके आता है। अभी मेरे को एक चीज तो फील हो रही है कि दिस ऑप्शन इज लुकिंग अ बिट ऑड बिकॉज द शिफ्ट हैज हैपेंड फ्रॉम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, कल्चर, नॉलेज जो इंसानों के कंटेक्स्ट में, और स्पीशीज पे आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है आंसर हो, लेकिन बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। ह्यूमैनिटीज अकम्प्लिशमेंट डिराइव फ्रॉम एन एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल फ्रॉम अदर पीपल। गाइस लुक एट दिस, यहां पे भी ह्यूमंस का और नॉलेज का जो रिलेशनशिप है उसकी बात हो रही है। अभी मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं? क्योंकि डी और बी ऑप्शन किसी सेंस में तो कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे भी नॉलेज की बात हो रही है कि ह्यूमंस जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो पूल्ड नॉलेज को बिल्डअप करते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, और यहाँ पे भी नॉलेज की बात हो रही है ह्यूमंस के कंटेक्स्ट में। बाकी स्पीशीज का तो लेना देना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फिर लास्ट और ई ऑप्शन क्या बोल रहा है? दिस कम्युनल स्टोर ऑफ एक्सपीरियंस एनेबल्स क्रिएशन ऑफ एवर मोर एफिशिएंट एंड डाइवर्स सॉल्यूशन टू लाइफ चैलेंजेस। ओके, सो लोगों के साथ जो आप एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, ठीक है, उसका जो एक स्टोर बनता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर गलती आप ही करो। ठीक है, आप दूसरों की गलतियों से भी सीखते हो, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हो, और वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे कलेक्ट होके एज अ ह्यूमन आपको हेल्प करते हैं in deciding your life's course of action and also how to deal with the challenges of life. Okay, to give you an example, like for example, there are a lot of things that you learn from your parents. There are a lot of things that you learn from your community. That experience also contributes to your knowledge. So ऐसा लग रहा है ना कि सारे connected हैं। ठीक है, B option talks about knowledge, D option talks about knowledge, E option talks about humans communal store of experience, which is also a type of knowledge, so that you can use it for your life challenges, right? एक ऑप्शन थोड़ी अलग ही बात कर रहा है, फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से सोशियोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं, वो भी किसमें? ह्यूमंस की तो बात ही नहीं हो रही, स्मॉल नंबर ऑफ स्पीशीज। नाउ इफ आई हैव टू टेक अ कॉल, हाउ वुड आई डू दिस क्वेश्चन? I will say that C option is the answer, right? Now, if I have time, then maybe I would like to look at the links also. Okay, but prima facie I can see, जो मुझे फील होता है C option एक काफी अच्छा चॉइस है जो मैं ओवरऑल सुपरफिशियली पढ़ के निकाल सकता हूं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिंक्स, राइट? So guys, B option talks about knowledge. B option also talks about knowledge जो मैंने बात की थी। तो D और B का तो 100% लिंक है। D option being the starting option, क्योंकि बाकी ऑप्शन स्टार्टिंग हो नहीं सकते, किसी में दिस आ रहा है, किसी में इट आ रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है, ह्यूमैनिटीज अकम्पलिशमेंट ड्राइव फ्रॉम एन एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल फ्रॉम अदर पीपल। ह्यूमैनिटी की जो अकम्पलिशमेंट है वो इस बात पे बेस्ड होती है कि हम लोग दूसरे लोगों की नॉलेज और स्किल सीख लेते हैं। फिर इंडिविजुअल्स बिल्डअप करते हैं दैट रिजर्वायर ऑफ पूल्ड नॉलेज ओवर लॉन्ग पीरियड्स। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ, एक चीज आपने कहीं और से सीखी, दूसरी चीज कहीं और से सीखी, और धीरे धीरे आपने उस नॉलेज को बिल्डअप किया। ठीक है, तो ये बिल्डअप किया किसको, नॉलेज को, तो डी और बी का लिंक हो गया। अब जब ये तुमने बिल्डअप किया है तो उसके कंटेक्स्ट में आपने ये यूज किया फ्रेज दिस कम्युनल स्टोर ऑफ एक्सपीरियंस। गाइस ये देखो, दिस कम्युनल स्टोर ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये कहां से आ रहा है, दिस कम्युनल स्टोर ऑफ एक्सपीरियंस से कहां से आ रहा है, ये इंडिविजुअल्स बिल्डिंग अप ऑन रिजर्वायर ऑफ ओल्ड नॉलेज ओवर लॉन्ग पीरियड्स। ओके, तो यहां से आ रहा है। ठीक है, सो भाई ये इसका रेफरेंस यहां से आ रहा है। ठीक है, तो ये ई ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, एंड देन if I have to put it to end, then finally I would say that it was not our large brains intelligence and language that gave us culture, but our culture that gave us large brains intelligence and language, which means that this pool of experience, knowledge that we have gathered over long periods of time, that is what finally results in our intelligence as well. Okay, so if I look at the options, I can group it somewhat in this way, DBEA. Okay, DBEA हमारा एक पोटेंशियल लिंक बन जाएगा, और काफी मतलब मैनेजेबल क्वेश्चन है. आई थिंक यू कैन ऑल्सो सी वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज रियली गुड अबाउट दिस क्वेश्चन वाज लाइक a very big hint, small number of species. Okay, so which directly takes me to the answer. Okay, so that was the second question, guys, and that's it for today. Baki kuch batches hain, you can check it out. Okay, so guys, we are running a booster batch. You can check out this batch. Okay, it's available at a subsidized price. Then we have these individual quants, DLR and VRC. ठीक है, so discount code आप use कर सकते हो and you will get this course at 3600 rupees, and you can check out these courses. Anyone who is preparing for CAT, these courses are beneficial for you. Okay, so that's it, guys. मिलते हैं next session में. Bye bye.